علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو 30 نیکیاں کما لی، 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کیے، 30 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سب تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام کا نزول و جی ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، بزرگوں، ملت کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، سامعین و سامعات، عزیز بچوں، مستقبل کے پروانوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کو حمد و صلات کے بعد پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اولاد کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے۔ میں عصر کے بعد سے غور کر رہا تھا کہ تمام ہمارے ننھے منھے بچے جو ہے پیارے پیارے اپنے تدلی زبان میں بھی بہت میٹھے میٹھے انداز میں بیان کیے۔ میں غور کر رہا تھا کہ انہوں نے توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں، بدعت و خرافات کے بارے میں، اور قبر و مزار کے بارے میں، ذرا ساؤنڈ رکھو گے، ساؤنڈ کم ہو گیا، اور عصر کے بعد ایک بچہ انگریزی زبان میں والدین کا جو مقام ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور بعد مغرب ایک بچی نے ماں باپ کی خدمت کرنا کیسا ہے اس کے تعلق سے بتایا۔ میں محسوس کرنے لگا کہ اب تربیت اولاد کے لیے کچھ کہا جائے، بتایا جائے، بولا جائے، ایکسپلین کیا جائے۔ یہ میں اپنے ذہن میں خاکہ بنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دیں، انہوں نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ تو میں اس موضوع پر بات کو طول نہ دیتے ہوئے مختصراً یہ کہنا میں مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ جان لو، یہ سمجھ لو کہ بے شک تمہارا مال، تمہارا اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو ہم اس پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد ہے۔ ایک دی تب بھی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ نے 10 دی تب بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ تو اولاد کیا ہوتی ہے ان لوگوں سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ اولاد کی جو قدر و قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ جن کو اولاد دیا ہے کہ وہ لوگوں کو چاہیے کہ آزمائش فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے جو آپ کے لیے وقت ہے،
अपने औलाद की सही तालीम और तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करें, इसलिए कि ये वो वक्त है जो आज के बच्चे हमारे आज के नन्हे हैं, कल के बड़े हैं। तो हमारी जो जिम्मेदारी होती है यही क्या है, किसी मदरसे में बच्चों को भेज दिया जाए, कुछ तालीम दिलवाया जाए, यही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी यही तरबियत नहीं है कि हम बड़ों का एहतराम कराना सिखाए, बड़ों को सलाम करना सिखाए और छोटों से शफकत करना सिखाए, किसी को छेड़ना ना सिखाए, यही तरबियत नहीं है। बल्कि तरबियत तालीम के साथ तरबियत होना चाहिए। इस मौजू पर आपने बहुत सी जो है बातों को आपने समात फरमाया है, सुन लिया है। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह इरशाद फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतु हर्सकुम शिअतुम। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है कि औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत जात को खेत कहा है, हमें इसको अग्री करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। और खेत से क्या मुराद है आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। इंसान जब जिरात करने के लिए जाता है, सबसे पहले जमीन को जो है इंतखाब करता है, जमीन का इंतखाब करता है, ये जमीन पीकने वाली क्या नहीं पीकने वाली, और इसमें ये फसल उगा सकते क्या नहीं उगा सकते, क्या ये जमीन बहुत ही जो है फायदेमंद है, क्या मंजर है, इसको इंसान जो है देखता है, देख करके उसको जो है इंतखाब कर लेता है। और उसके बाद उसके लिए जरूरी है कि बीज का भी इंतखाब करें, बीज भी अच्छा हो। अगर खेत अच्छा है, बीज अगर खराब है, बीज को बोने के बाद आपका मेहनत जो है बर्बाद है। और उसके बाद इंसान जो है खेत को, जमीन को इंतखाब करने के बाद अपने जो है बीज भी इंतखाब करता है। उसके बाद उसे ये मालूम होता है कब पानी देना है, कब नहीं देना है, पानी कब देना है, कब नहीं देना है। अब बरसात का मौसम होता है, बरसात में पानी यूं ही आसमान से जो है बरसता रहता है। कोई पानी बांधने के लिए जाता, खेत को पानी बांधने के लिए जाता नहीं जाता। तो अगर कोई इंसान गर्मा के मौसम में, दुबकाले में अगर पानी ना बांधेंगे, पानी ना सैराब कराएंगे, तो क्या खेत उग सकती है? हरगिज़ नहीं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो औलाद को दिया है कि उन लोगों को चाहिए उसकी कदर करे, इस नेमत की कदर करते हुए अपने औलाद को जो है सही और तालीम और तरबियत से आप आरास्ता और पैरास्ता करें। आपके लिए मैं एक सवाल करता हूँ, एक सवाल करता हूँ, वो क्या है, किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में ये दुआ पढ़ाई जा सकती है? कौन सी दुआ? रब्बिर्रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कहीं पढ़ाते हैं? किसी स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ, नहीं पढ़ाते हैं। जब वहां जाएंगे बच्चे ABCD, हाँ, बाद में ट्विंकल ट्विंकल स्टार, इस तरह के जो है पोएट्री सीखेंगे, इस तरह बोली सीखेंगे। जब यही मदरसे में वो बच्चा आता है, यहाँ सब कुछ सीखता है, सब कुछ सीखता है। दुनिया के अंदर अपने माँ बाप की खिदमत करना भी सीखता है, बड़ों का एहतराम करना भी सीखता है, और छोटों के साथ किस तरह पेश आना, उनके साथ शफकत कैसा करना, ये भी सीखता है। तो हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि तालीम में जो हमें ज्यादा जोर दुनियावी तालीम के लिए जोर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी हर मुसलमान पर इल्म सीखना क्या है? फर्ज है, फर्ज ऐन है। तो हम इल्म को वो समझा है जो, जबकि हमें स्कूल में जो LKG, प्री-KG, UKG के बच्चों को जो कितनी मेहनत करते हैं माँ बाप खुद, क्या है, उनके बैगों को ले जाकर के स्कूल में जाकर उनके टेबल, उनके कुर्सी पर रख करके वापस आते हैं। आज कोई ऐसा जो है वालिद है
जो वालिदा है जो अपने बच्चे को जो है मदरसा तक ला करके नहीं छोड़ता, इसलिए कि इस दीन को जो है क्या कर दिए है, इल्म को माश का जरिए के साथ माश के साथ जोड़ दिया गया है कि ये दीनी तालीम हासिल करेंगे, ये अलिफ सीखेंगे, कल जाकर के क्या करेंगे, किसी मस्जिद में इमाम होकर के ठहरेंगे, इमामत कराएंगे या किसी मदरसे में पढ़ेंगे, मगर वहां पढ़ेंगे तो वहां इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, साइंसदान बनेंगे, इस तरह का जहन होता है। तो अगर आप अपने औलाद को अगर डॉक्टर बनाओ तो आपकी जो औलाद है वो कल तुम्हारे लिए गोली दे सकता है, इंजेक्शन दे सकता है, और वो जो है आपके लिए दुआ नहीं कर सकता है। तो ये दीनी तालीम जो है हमारे औलाद के लिए देना बेहद जरूरी है। आप अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं? बोलो भाई, आप अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं? तो लीजिए आज जो है चंद जो है टिप्स आपके जो है गोशे गुजार करना चाहता हूँ। बच्चों को नमाज का पाबंद कैसे बनाए, चंद, मुझे वक्त जो है बहुत ही शॉर्ट है तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि टिप्स नंबर 1, अपने बच्चों को नमाजी बनाने की फिक्र जो है अपनी शादी से पहले ही करें, और उस वक्त तक मुमकिन होगा जब आपका इंतखाब नेक बीवी या नेक शौहर हो। तो मालूम हुआ जब हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को नमाजी बनाना चाहते हैं तो हमारा इंतखाब सबसे पहले सही होना चाहिए। आप अगर कोई गाड़ी लाना चाहते हैं, गाड़ी पर सवार होना चाहते हैं, आप मार्केट में देखते हैं कौन सी गाड़ी कितने में है, कौन सी गाड़ी कितने माइलेज में भागती है, कौन सी गाड़ी जितना खर्चा कम आता है, इसको देख करके इंतखाब करके शोरूम जाकर के गाड़ी लाते कि नहीं? इसी तरह जब आप दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब व कामरान होना है तो सबसे पहले आपका इंतखाब जो है, सबसे पहले अपनी बीवी का इंतखाब सही होना चाहिए, वो नेक होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए। इसी तरह एक औरत भी अपने शौहर का जो है इंतखाब करने में वो ये मेयार इख्तियार करे कि अपना शौहर दीनदार हो, नेक हो, सालिह हो, जब जाकर के अपने बच्चे जो है आप जो है नमाजी बना सकते हैं। और दूसरा टिप्स ये है, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए सबसे पहले माँ बाप का मुखलिस होना जरूरी है। ये मुखलिस होना जरूरी है। ये जो है जिस कदर मुखलिस होंगे उसी कदर रास्ता जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन आसान करता जाएगा। अब टिप्स नंबर 3 को लीजिए। बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए खुद माँ बाप का क्या है, माँ बाप का भी नमाज का पाबंद होना ये भी बेहद जरूरी है। अगर माँ बाप नमाज ना पढ़ेंगे और बच्चों से ये ख्वाहिश करेंगे, उम्मीद लगाएंगे कि वो नमाजी बन जाए, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कि ये चंद टिप्स है जो मैं आपके सामने बताना चाहता था, मगर ये एक जो है इसके लिए कम से कम एक आधा घंटे की मुझे जरूरत है, आधा घंटा वक्त लगता है। बहरकैफ मैं आखिर में इख्तिसार करते हुए ये बताना चाहता हूँ, जब आप अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं, खुद नमाजी बने। औरतें अपने घर के अंदर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं अपने साथ में लेकर के नमाज पढ़ाएं, नमाज का तौर तरीका सिखाएं। ये नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद भेज देते हैं, अब रमजान आया मस्जिद को भेज देते हैं, वहाँ शोर शराबा करते हैं, मौलवी साहब अड़ाते हैं, मौजम साहब अड़ाता है और निकल के चले जाते हैं। मस्जिद को गए तो बच्चों को डरा के भेजते हैं, ये शिकायत शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तरबियतगाह वो अपना घर है, अपना मकान है। जो औरतें खुद नमाज पढ़े, अपने बच्चों को भी नमाज का तौर तरीका सिखाएं। तो इस मौजू पर बोलना तो मेरे लिए वक्त साथ नहीं देता है। बस इन्हीं बातों पर जो है इख्तिसार करते हुए मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको नेक बनाए, हमारे औलाद को नेक बनाए, बंदगाना वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ अदा करने वाले बनाए और जन्नत के मुस्तहिक बनाए और हमारे खबीरा सगीरा गुनाहों को दरगुजार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।